Now in this class we will see what are haptens. In this, you already know that the antigens are those molecules which elicit an immune response or bind to the components of the immune system, such as antibodies. And in this way, they elicit the immune response if this is a complete antigen. While haptens are incomplete antigen, they also elicit the immune response, but in a different manner. Okay, different manner than this. So how? How do these haptens elicit an immune response? What are haptens? Haptens are small molecules, okay, that cannot elicit the immune response on its own, but it needs carrier molecule. Both of them alone cannot elicit immune response alone. एक catch ये भी है कि but the second exposure to the haptens only can elicit the immune response. The first time इसका यूज होता है वैक्सीन में. If this is an hapten, and if you give the inject it into an animal, it will not first time give immune response. दूसरा तो फर्स्ट में hapten plus carrier molecule. If you that inject in the animal, इस पर स्टाइलस काफी फिसलता है. Animal, then you see immune response. This is the, then you have to do first exposure. First exposure with haptens only, no result. First exposure in conjugation with the carrier molecule, it will elicit immune response. The second exposure, if you repeat this hapten only, then it will give immune response in the second exposure. So in the second exposure, you will not be needing carrier molecule. Now the question arises, how do haptens elicit an immune response? जैसा कि अभी आप जानते ही हैं कि unlike antigens, haptens are make a note out of it.
क्या लिखोगे? अनलाइक एंटीजेंस haptens require an additional molecule for before they are able to elicit an immune response. Unlike antigens, haptens require an additional molecule before they are able to elicit an immune response. This additional molecule is carrier molecule. These additional molecules are so these additional molecule कॉम्प्लेक्स यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है हैप्टेन और कैरियर मॉलिक्यूल का ओके आर often proteins to which hapten binds to tightly by a covalent bond. So the bonding between hapten and carrier molecule is covalent bond. Third, the formation of the hapten carrier molecule complex causes the hapten to become immunogenic. कहने का मतलब हुआ हैप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स ही इम्यूनोजेनिक है, दोनों अकेला में नहीं. रिजल्टिंग इनटू resulting in the production of anti-hapten antibodies.
ओके, समझ में आ रहा है जो लिख रहे हैं? तो डू यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। नेटवर्क ठीक है ना? यस सर, एक बार इसको समझा दीजिए। हैप्टेन क्या है? इनकम्प्लीट एंटीजन है। ये कंप्लीट कब होता है? एंटीजन कब बनता है? जब एक कोई एडिशनल मॉलिक्यूल इसके साथ कोवेलेंटली अटैच हो जाए, तो इसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा, देन इट विल बिकम। और जो एडिशनल मॉलिक्यूल है दैट इज जनरली प्रोटीन, और प्रोटीन डाइवर्स होता है, बताया हुआ है। इट इज most potent in inducing immune response. ठीक है, so that's why protein is used and it gives a good result. So protein is combined with the hapten, the smaller molecule, and this complex becomes a larger molecule complex. So hapten is basically, hapten is containing at least one epitope in this, in it, at least one. अगर एपिटोप इसके अंदर होगा नहीं तो इसको कंबाइन करने से भी इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है कि एंटीजन, हैप्टेन और कैरियर मॉलिक्यूल ये इम्यूनोजेनिक होना चाहिए। मिलने के बाद हैप्टेन अकेला इम्यूनोजेनिक नहीं है, कैरियर मॉलिक्यूल अकेला इम्यूनोजेनिक नहीं। तो जब ये इम्यूनोजेनिक मीन्स कि इस कॉम्प्लेक्स को एडमिनिस्टर करने के बाद एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है इन द एनिमल, so that antibody will be against, if hapten is carrying at least one epitope, then those antibodies will be having specificity against hapten. And it is also likely that CM carrier molecule regions, because this is a big molecule, carrier molecule, different regions of the carrier molecule can also contribute as epitope for the production of antibodies. हैप्टेन कैरियर मॉलिक्यूल पूरे कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट एपिटोप बनेंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे। हो सकता है एपिटोप हैप्टेन पर प्रेजेंट हो सकता है एपिटोप कैरियर मॉलिक्यूल पर भी प्रेजेंट हो सकता है दोनों पर एपिटोप प्रेजेंट यूटिलाइज किया गया। और एंटीबॉडीज जो जनरेट हुआ इन द सर्कुलेशन में, those antibodies are having specificities against the epitopes present on hapten or carrier molecule or both. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिटोप्स होंगे, बी सेल एपिटोप्स भी हो सकते हैं, टी सेल एपिटोप्स भी हो सकते हैं। ओके, कहने का मतलब हुआ अगर हैप्टेन पर एक भी एपिटोप नहीं है तो हम उसको क्यों यूज करेंगे बेकार, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो हैप्टेन को यूज किया जाता है एटलीस्ट वन कैरियर मॉलिक्यूल हो, then it will become immunogenic. ये भी हो सकता है हैप्टेन के ऊपर कोई कैरियर मॉलिक्यूल कोई एपिटोप नहीं है, लेकिन कैरियर मॉलिक्यूल के साथ जब ये कंबाइन करता है उसके बाद इम्यूनोजेनिक हो जा रहा है, लेकिन हैप्टेन पर एपिटोप नहीं है, तो एंटीबॉडी जो जनरेट होगा वो सब अगेंस्ट होगा एपिटोप्स प्रेजेंट ऑन द कैरियर मॉलिक्यूल। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? हैप्टेन। वैक्सीन बनाने में क्या इंपॉर्टेंट है? हैप्टेन। क्या किए?
जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन जिससे बार बार बीमारी हो रही है, सपोज कोरोना नया वेरिएंट आया, उसके स्पाइक प्रोटीन का हम एक फ्रैगमेंट वी विल चूज, thousands of fragments can be generated. अब लक है, बाय चांस है, कंप्यूटर मॉडलिंग है, बहुत सारा इफ बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के ही हैज वन, इफ वन पर्सन इज चूजिंग वन रीजन ऑफ दिस स्पाइक प्रोटीन, और उसके फ्रैगमेंट को, दैट फ्रैगमेंट कैन बी यूज्ड एज हेप्टेन. The size is small, so that alone cannot elicit antibody response, एंटीबॉडी जनरेशन नहीं होगा, तो उसको कैरियर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर दिए. अब सुरक्षित है वो, उसके फ्रैगमेंट्स को, पूरे प्रोटीन को ना लेके उस प्रोटीन के फ्रैगमेंट को लेंगे. ठीक, अब उसके बाद उसको इंजेक्ट किए माउस में, माइस में. अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है और हेप्टेन, सॉल्युबल हेप्टेन हम डालें, not present in the complex, and if the heptane alone is binding with antibodies, suppose after the production of these antibodies population, if this antibody population is binding with the antibody heptane alone, because this is a kind of lock and fit key, lock key fit model arrangement. Heptane का जो surface है, outer surface, it will fit into the antibody specific variable region which is determining the specificity. तो हेप्टेन प्रोटीन का फ्रैगमेंट, अकेला हेप्टेन जो है एक फ्रैगमेंट, वो एंटीबॉडी के साथ कंबाइन कर गया. ठीक है, लेकिन ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कब हुआ था? जब वो कैरियर मॉलिक्यूल के साथ था कॉम्प्लेक्स में, देन दैट टाइम. तो एक बार एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद हेप्टेन अगर कैरियर मॉलिक्यूल के साथ नहीं भी है, अकेला भी घुस रहा है, तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ. तो ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन. क्या करके वायरस प्रोटीन का फ्रेगमेंट को वी हैव यूटिलाइज्ड एज हेप्टेन एंड कंजुगेटेड इट विद द suitable carrier molecule, and then we have injected or administered this as vaccine. Immune response elicit हो गया. Now the animal will have antibodies against this heptane molecule. चांस है कि हेप्टेन का एपिटोप के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया होगा, यानी वो प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल में तब्दील हो गए होंगे जिनसे वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है. नाउ द सेकेंड एक्सपोजर विल हैपन फॉर योर प्रोटेक्शन. इस टाइम क्या हुआ, कोरोना आया, वैक्सीन लगा हुआ है इस आदमी को, और क्या होगा, कोरोना एज ए वायरस पूरा एंट्री किया. अब उसके हेप्टेन का एक रीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी इज प्लाज्मा से मेमोरी सेल इज देयर. प्लाज्मा सेल तो फिर बाद में वैक्सीन का चैलेंज खत्म हुआ, 2 दिन में मिनिमम 1 वीक तो लगेगा, 1 वीक में वो फिर सबसाइड कर गया. प्लाज्मा सेल, सम ऑफ द प्लाज्मा सेल, active plasma cell, they are differentiated into memory cell. Upon the second encounter, memory cell quickly become plasma cell and it starts producing that type of specific antibody quickly. तो इसका फायदा ये मिल गया कि अब जब सेकेंड टाइम में जब पैथोजन एंट्री किया, वायरस एंट्री किया, तो उस समय वो कैरियर मॉलिक्यूल तो अपने साथ लेके चलेगा नहीं, वो पूरा का पूरा अपना प्रोटीन एक्सपोज कर दिया इन द इम्यून सिस्टम for its recognition and response. Now immune system, our immune system, because it is already been given a training here, पहले दिया जा चुका है इसको, and the same heptane
same antigen, because this hapten is part of the antigen, big antigen. ठीक, अब ये मिल गया इसको, now the antibody will destroy that virus. Okay, have you got it? इसीलिए मैंने पहले फिगर में बनाया था कि हेप्टेन एलोन फर्स्ट टाइम एक्सपोजर इट कैन नॉट एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स. हेप्टेन when conjugated with carrier molecule it will give the second encounter with the same antigen will give you immune response also. आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? कुछ पूछना है? आवाज आ रही है क्या? नो सर. नेटवर्क ठीक है? यस सर. ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हेप्टेन के. ठीक, ये जो अभी हम बात बताए वो लिख दोगे. अपॉन सेकंड एक्सपोजर, सेकंड एक्सपोजर किससे हुआ? वैक्सीन देने के बाद, जब पैथोजन एंट्री किया तब. सेकंड एक्सपोजर, these antibodies can डायरेक्ट एंटीबॉडी लिख दिए हैं. दीज एंटीबॉडी, ये दीज एंटीबॉडीज कहाँ से आया? मान लो वैक्सीनेशन होने के 2 साल के बाद उसको पैथोजन एंट्री हुआ, सेकेंड एक्सपोजर हुआ, तो 2 साल तक थोड़ी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते रहेगा. वैक्सीन को भी वो ट्रीट किया एज फॉरेन सब्सटेंस, उसको क्लियर कर दिया, एंटीबॉडी बन गया, वैक्सीन क्लियर हो गया. अब वो एंटीबॉडी जिस भी प्लाज्मा सेल से आया है उसमें से कुछ प्लाज्मा सेल जो एक्टिवली सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे थे, वो प्लाज्मा सेल दैट विल बिकम मेमोरी सेल. एंड अपॉन सेकेंड एक्सपोजर, दोस सेकेंड एक्सपोजर, फिर क्या हुआ? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको लेके जाएगा एपीसी लिम्फ नोड में, प्रोसेस करके एंटीजन को, एंड इट विल बी गिवन. So upon second exposure, these antibodies can recognize and bind to the same hapten in the absence of the carrier molecule. आ रहा है समझ में? यस सर. Therefore, it can be said that although haptens need a carrier molecule to become immunogenic, they are also antigenic as they are able to bind to antibodies or other components of the immune system. Okay.
Therefore, although haptens need a carrier molecule to become immunogenic, they are also antigenic as they are able to bind to antibodies or other components of the immune response. Primed by the, which has already been primed by the hapten carrier molecule कॉम्प्लेक्स। पास्ट में जो उसका मुकाबला हो चुका है हैप्टेन करियर मॉलिक्यूल के साथ, प्राइमिंग हो चुकी है इम्यून रेस्पॉन्स की, उसकी वजह से इस हैप्टेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पहले से उसका प्राइमिंग हो गया है, तो बाद में करियर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आ रहे समझ में? सर ये प्राइम लिखे हैं सर। प्राइम्ड, अच्छा, प्राइम्ड, प्राइम्ड कहते हैं पहले से उसको एक्सपोजर हो गया है, प्राइम्ड है। जैसे प्राइम, प्राइमर हुआ, प्राइम हुआ, ठीक है? लकड़ी के ऊपर, लोहा के ऊपर पेंट करने से पहले प्राइमर कराते हैं, प्राइम्ड। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम एनीवेयर टिल नाउ? सिंपल, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कुछ पूछना है तो नो पूछ। सर। आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। कैरियर मॉलिक्यूल किस तरह का मॉलिक्यूल है? Carrier molecules are basically carrier molecules used are generally proteins. For example, albumin, सीरम एल्बुमिन ब्लड में होता है, एल्बुमिन नाम का प्रोटीन। इफ यू कैलकुलेट टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन योर ब्लड circulation, टोटल प्रोटीन इन सर्कुलेशन, ये हमेशा 6.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए।
ठीक है, 6.6 to 8.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसका नॉर्मल रेंज है। If the person is having less than this protein circulating in its blood, then what will happen? Water will accumulate in the tissues. उसको इडमा हो जाएगा, हाथ पैर फूल जाएगा, वाटर रिटेंशन होगा। और अदर, पहला तो यही साइन आएगा, और प्रोटीन कम होने से और भी वीकनेस और डेसिकेशन ऑफ द स्किन, बहुत सारा साइन है दैट विल हैपन। तो यहाँ क्यों चर्चा है टोटल प्रोटीन का? इसलिए क्योंकि एल्बुमिन बोले, एल्बुमिन एक तो एग में देखते हो आप, एग व्हाइट इज क्या है, हेंस एल्बुमिन दैट वन, बट ह्यूमन एल्बुमिन इज डिजॉल्व्ड इन द सीरम, ब्लड सीरम। तो अब जनरली क्या होता है, टोटल प्रोटीन इज इक्वल टू टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी, ब्लड में बहुत सारे एंटीबॉडी दौड़ रहे हैं, ग्लोब्यूलिन्स, ये ग्लोब्यूलिन है क्लास, ये एल्बुमिन है, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस एल्बुमिन। Second. Hello. Hello. Hello, sir. Hello, Yes, sir. sir. Okay, so total, so this is the albumin, that albumin. Okay, it is present in the blood. इसके अलावा भी और प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो प्रोटीन है ब्लड में दौड़ रहा है वो ये दो क्लास के, ठीक है। देयर आर अदर सीरम प्रोटीन्स आल्सो, लेकिन इनकी मात्रा कम है। इन दोनों को ही जोड़ देने पर हेल्दी रेंज 6.6 to 8.8 आ जाता है। तो दिस इज दैट प्रोटीन एल्बुमिन। एल्बुमिन इज ठीक है, एल्बुमिन carrier molecule used generally are used are generally proteins. If ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि तभी इम्यूनोजेनिक होगा जब लार्ज मोलिकुलर वेट होगा। इफ हैप्टेन एल्बुमिन, ठीक है, एक खास बात ये भी है यहाँ,
तो आप कहोगे कि एल्बुमिन हमारे अंदर भी है, मंकी के अंदर भी है, मुर्गी के अंदर भी है, सब में है, हेन में है, सारे एनिमल्स में है। हेन में भी एल्बुमिन है, मंकी में भी है, एंड इन ह्यूमंस ऑल्सो। तो अब क्या हेन का एल्बुमिन हम डायरेक्ट, क्योंकि कैरियर मॉलिक्यूल है, अगर ह्यूमन में इंजेक्ट कर दें, will that elicit immune response? Tell me. एल्बुमिन लार्ज मोलिकुलर वेट है, प्रोटीन है, क्या इस एल्बुमिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा? हेन एल्बुमिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा ह्यूमन सीरम में? हेलो, यस कि नो? नो तो नो क्यों और यस तो यस क्यों? कैन एनीबॉडी आंसर? इट विल नॉट गिव तो सबका स्ट्रक्चर अलग होगा। नो रेस्पॉन्स। क्यों? फॉरन तो है ही, प्रोटीन भी है, लार्ज मोलिकुलर वेट है, एल्बुमिन बहुत बड़ा प्रोटीन है, इसका अकेले का मोलिकुलर वेट एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन श्योर शॉट है 10,000 डाल्टन से तो ज्यादा होगा ही होगा। छोटा छोटा प्रोटीन का साइज 10,000 डाल्टन होता है, तो उससे ज्यादा होगा ही। नो रेस्पॉन्स, व्हाई? बिकॉज एल्बुमिन प्रोटीन अक्रॉस दिस क्लासेस ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, ये क्या हो गया, रेप्टिलिया हो गया, मैमिलिया, मैमल, तो ये कंजर्व है, इट इज हाईली कंजर्व। So it will treat hens albumin as if its own albumin, उसको एज ए सेल्फ मॉलिक्यूल ट्रीट करेगा वो। बहुत अच्छा साधन मिल गया, व्हीकल मिल गया ये। फिर किसी भी एनिमल का किस एल्बुमिन यूज करेंगे और that albumin when it conjugates with hapten, that will give immune response. Okay, so if hapten albumin is if hapten albumin complex is larger than 7,000 molecular weight, it becomes immunogenic.